تفصیلات میں آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی ممبران سے پارلیمنٹ لاجز کی رہائش گاہیں خالی کروانے کا معاملہ۔ سابق رکن قومی اسمبلی فاروق حبیب کے لاجز کا تالا توڑ دیا گیا۔ لاجز انتظامیہ نے فاروق حبیب کی کمرے سے سامان باہر نکال دیا۔ پارلیمنٹ لاجز کی انتظامیہ کی جانب سے سی بلاک کے تالے بھی توڑے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں، پی ٹی آئی ممبران سے پارلیمنٹ لاجز کی رہائش گاہیں خالی کروائی جا رہی ہیں۔ سابق رکن قومی اسمبلی فاروق حبیب کے لاجز کا تالا بھی توڑ دیا گیا۔ لاجز انتظامیہ نے فاروق حبیب کے کمرے سے سامان بھی باہر نکال دیا ہے۔ پارلیمنٹ لاجز کی انتظامیہ کی جانب سے سی بلاک کے تالے بھی توڑے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا رہے ہیں، اہم معاملہ ہے یہ، پی ٹی آئی ممبران سے پارلیمنٹ لاجز کی رہائش گاہیں خالی کروانے کا یہ معاملہ ہے، جس میں سابق رکن قومی اسمبلی فاروق حبیب کے لاجز کا تالا توڑ دیا گیا۔ لاجز انتظامیہ نے فاروق حبیب کے کمرے سے سامان باہر نکال دیا۔ پارلیمنٹ لاجز کی انتظامیہ کی جانب سے سی بلاک کے تالے بھی توڑے جا رہے ہیں۔ چیئرمین عمران خان نے انتخابات نہ لڑنے کے فیصلے کے بعد پی ڈی ایم کا یو ٹرن سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور حکومتی اتحادیوں کا 33 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے حصہ لینے کا ارادہ بن گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو معاملہ چل رہا ہے، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین عمران خان کے انتخابات نہ لڑنے کے فیصلے کے بعد پی ڈی ایم کا یو ٹرن سامنے آ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور حکومتی اتحادیوں کا 33 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے حصہ لینے کا ارادہ بن گیا ہے۔ مہنگائی کا سونامی غریبوں کے لیے پریشانی ہی پریشانی۔ مظفر گڑھ میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بڑھتی قیمتوں نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ رپورٹ کریں گے سمیع اللہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے کھانے پینے کی تمام تر اشیاء خوردنوش میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سبزی فروٹ اشیاء خوردنوش غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ آئے روز اضافے سے شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل بنا دیا۔ غریب مزدور تازہ دہاڑی دار کا بچوں کا پیٹ پالنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ دوسری جانب شہری یہ بھی گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں فعال نہ ہونے کی وجہ سے دکانداروں نے بھی شہریوں سے من مانے ریٹ وصول کرنے لگے۔ شہری حکومت وقت کو کوسنے لگے۔ کون دیکھے گا ہماری بات کو؟ پیٹرول 300 روپے لیٹر ہو گیا۔ عذاب یہ قیامت کا عذاب سارا، اور کیا غریب آدمی تو مر گیا۔ وہ امیر لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے ڈبل ہو رہا ہے پیسہ۔ شہریوں کا کہنا ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں فعال کی جائیں اور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب آدمی کا بھی 2 وقت کا چولہا چل سکے۔ شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان اور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ ملک بھر کی طرح ضلع کوہاٹ میں بھی مہنگائی عروج پر ہے۔ اشیاء خورنوش کے ساتھ ساتھ برائلر گوشت کی قیمت 400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ علی بنگش رپورٹ کریں گے۔ ملک بھر کی طرح ضلع کوہاٹ میں بھی مہنگائی عروج پر ہے۔ اشیاء خوردونوش کے ساتھ ساتھ برائلر گوشت کی فی کلو کی قیمت 400 روپے تک جا پہنچی ہے۔ جو نقنامہ حکومت نے دیا ہے وہ 10 روپے یا 8 روپے تقریباً ہم نے دے رہے ہیں۔ یہ اگر چکن 400 روپے کلو ہے تو پھر بھی ہمارے 10 روپے ہیں۔ یہ اگر 100 روپے کلو بھی ہو جائے تو نقنامے میں جو ریٹ ہیں پھر بھی ہمارے 10 روپے ہوں گے۔ تو دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز برائلر گوشت کی نئی قیمتوں نے ہمیں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ اب ہم برائلر گوشت دیکھ سکتے ہیں مگر خرید نہیں۔ برائلر مرغی جو ہے نا اس کے ریٹ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اس کو ریٹ کو کنٹرول کرے، کیونکہ آج بھی میرے خیال میں کوئی 400 کے لگ بھگ اس کا ریٹ آ رہا ہے نا، تو یہ ابھی اس کو غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ حکومت کی چاہیے کہ اس پہ ایکشن لے اور اس کو ریٹ کو تھوڑا سا مناسب کر دیں۔ کوہاٹ کے عوامی حلقوں، سماجی تنظیموں اور کاروباری حضرات نے موجودہ حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول میں لانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائی جائیں۔ علی بنگش، سچ نیوز، کوہاٹ۔ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی ٹرنچ روڈ سے شروع ہو کر شہر کے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے جلسے میں تبدیل ہو گئی۔ شرکاء نے مہنگائی کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ جلسہ عام سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں حالیہ مہنگائی نے غریب عوام کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ شہر میں آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہونے سے غریب عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے ترسنے لگی ہے۔ حکومت شہر میں سستا آٹا فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ شہر میں سستا آٹا فراہم کیا جائے۔
कंबर शहदाद कोट में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने एहतजाजी रैली निकाली। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। कंबर शहदाद कोट में पेट्रोल और अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतें देखकर शहरी फूट पड़े। शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कारकुनान महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम से जीने का हक छीन लिया। बच्चों का पेट पालें या पेट्रोल के अखराजात बर्दाश्त करें। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालिबा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फराहम ना कर सके। तांदियावाला के यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई ने डेरे जमा लिए। घी, आटा, चीनी समेत तमाम अशिया खुरनोश गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। तांदलेवाला में महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर को भी न बख्शा। आवाम के लिए बनाए गए सस्ते स्टोर भी अब सस्ते न रहे। महंगाई खत्म नहीं होगी, अब सांसें ही खत्म होंगी। तहसील तांदलेवाला के यूटिलिटी स्टोर भी अब सस्ते न रहे। मुख्तलिफ अशिया जरूरिया की कीमतें आपे से बाहर हो गई। तहसील भर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर पे घी, आटा, चीनी की शदीद किल्लत के बायस शहरी मायूस घरों को लौट रहे हैं। सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि महंगाई का तूफान और हुकूमत की इस जानिब ख्वाब गफलत लम्हा फिक्रिया है। 500-700 रुपए लेकर मार्केट का रुख करने वाला मजदूर मुख्तलिफ अशिया के दाम सुनकर सहम जाता है। घरों में भूख से बिलखते बच्चों के चेहरे और वालदैन की खामोशी बहुत कुछ अया कर रही है। अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए शहरियों ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर पे मनपसंद के लोगों में सामान की तकसीम जारी है। यही वजह है कि पैसों के बावजूद भी आटा, घी, चीनी हाथ नहीं आ रहा, जिस पे मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर आज़म से महंगाई के मुकम्मल खात्मे और अवामुन्नास को फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। खैरपुर के सरकारी सिविल अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी मसला बन गई। मरीजों के लवाहिकीन महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे अली गोहर। खैरपुर की सरकारी सिविल अस्पताल में अद्वियात न होने के बायस गरीब आवाम प्राइवेट स्टोरों से महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर है। सरकारी सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स आने वाले मरीजों को अद्वियात की पर्ची बाहर की लेकर दे देते हैं कि प्राइवेट स्टोरों से अद्वियात लेकर आएं। कोई दवा नहीं है। हर बीमारी के 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए। इंसुलिन, शुगर की इंसुलिन बाहर से लिख रहे थे, बाहर से ले लो, यहाँ नहीं है। गरीब कहाँ जाए जिसके पास कुछ भी नहीं है। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि शुगर, इंसुलिन और ब्लड प्रेशर की अद्वियात और दीगर इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात खैरपुर की सरकारी सिविल अस्पताल में फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि गरीब आवाम महंगे दामों प्राइवेट स्टोरों से दवाइयाँ खरीदनी ना पड़े। अब्बासपुर में आटा नायाब हो गया। आटे की अदम दस्तयाबी पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 वक्त की रोटी के हसूल भी इम्तिहान बन चुका है। रिपोर्ट करेंगे मुबशर नकवी। आटा इंसान की बुनियादी जरूरत है। किसी भी इलाके में आटे के लिए एलोकेशन मुख्तस की जाती है। अब्बासपुर का इलाका 80,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जिनके लिए 35,000 थैला माहाना दरकार होता है। महकमा खुराक की जानिब से अब्बासपुर के लिए 20,000 से 21,000 आटे का थैला माहाना बुनियादों पर मुहैया किया जाता है, जिसकी वजह से आटे की किल्लत हो जाती है। अब्बासपुर के शहरियों ने आटे की किल्लत के पेश नजर अब्बासपुर की मेन रावलपिंडी शाहराह को बंद करके धरना दिया। शहरियों ने मुतालबा किया कि अब्बासपुर के वासियों के लिए आटे की एलोकेशन को बढ़ाते हुए आटे की किल्लत को दूर न किया तो एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज में अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, तलबा तंजीमों और सियासी कायदीन की कसीर तादाद शरीक रही। अब्बासपुर के शहरियों ने शाना पर टायर जलाकर ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया। इंतजामिया से मुज़ाकरात हुए। इंतजामिया ने 1 मार्च तक का वक्त मांग लिया, जिस पर एहतजाज मौखर कर दिया गया। अगर महकमा खुराक आटे की एलोकेशन बढ़ा दे तो आटे की किल्लत दूर हो सकती है। कैमरा टीम के साथ मुबशर नकवी, सच टीवी, अब्बासपुर, आज़ाद कश्मीर। दादू में महंगाई का तूफान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। चक्की मालिकान आटे के दुगने दाम वसूल करने लगे। दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। मीर शहदाद खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दादू में भी दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के बाद दिहाड़ीदार मजदूर तबका परेशान। शहरियों का कहना था कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों के बाद गुजर सफर करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। पहले जहां हम अपनी दिहाड़ी से पूरे दिन का गुजर सफर करते थे, अब आटे की बढ़ती हुई कीमतों के बाद एक वक्त का गुजर सफर करना भी मुश्किल हो गया है। आटा जो 1 किलो में आता है उसमें रोटियां पकती हैं 4 या 5, तो 150 वाला बंदा, गरीब बंदा 500-700 दिहाड़ी वाला आखिर करेगा तो करे क्या। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि आटे की कीमतों में कमी करके महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि दिहाड़ीदार मजदूर तबका अपनी जिंदगी का पहिया बेहतर तरह से चला सके। कैमरामैन टीम कैमरा मिर्शदाद खान, सच न्यूज, दादू।
कबीर वाला अब्दुल हकीम में इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया को मुतादिद बार आगाह किया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट करेंगे चौधरी राहील रियाज। कबीरवाला के शहर अब्दुल हकीम मोहल्ला निजामाबाद में 50 लाख मालियत का लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि बल्दिया अब्दुल हकीम इंतजामिया की नाअहली और अदम तवज्जोही के बायस नकारा होने लगा है। जहां महीनों सफाई और फिल्टर तब्दील ना होने के बायस लाखों मालियत की मशीनरी तबाह हो रही है, वहीं अब्दुल हकीम मोहल्ला निजामाबाद और आस पास की बस्तियों के बासी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। अहलियान अब्दुल हकीम का कहना है कि बारहा बार बल्दिया अब्दुल हकीम के अमला को कॉल्स की जाती हैं मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। शहरियों का मजीद कहना है कि फिल्टर तब्दील न होने के बायस वो जहर आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं और मौजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि नाकस सफाई की वजह से लाखों की मशीनरी भी नकारा होने के करीब तर है। यहाँ पे सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। हमें बल्दिया वालों को कालें करनी पड़ती, महीना महीना कालें करनी पड़ती हैं। मजाल है उनका एक भी बंदा यहाँ पर आए और आकर सफाई करे। ये 50-50 लाख की मशीनें लगाई हुई हैं लेकिन इसके फिल्टर भी चेंज नहीं किए जाते। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया है कि बल्दिया अब्दुल हकीम से नोटिस लें और इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बाकायदगी से साफ करने और फिल्टर तब्दील करने के अहकामात जारी करें ताकि वो साफ पानी पी सकें और मौजी अमराज से महफूज रह सकें। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज़ कबीरवाला। लिया के नवाही इलाके का एलिमेंट्री स्कूल 4 दीवारी से महरूम है। स्कूल में आवारा कुत्तों ने डेरे जमा लिए जिसके बायस बच्चे खौफ में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। लिया के नवा इलाका चौक आजम के करीब चक नंबर 280 में मौजूद एलिमेंट्री स्कूल की 4 दीवारी न होने और सहूलियात के फुकदान के सबब बच्चों को तालीम हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे स्कूल में 4 दीवारी नहीं है, हमारे स्कूल में खेलने का ग्राउंड नहीं है, हमारे स्कूल में आवारा कुत्ते फिरते हैं। सर जैसे स्कूल के दीवार चाय देते आवारा कुत्ते फिरते थे। हमारे स्कूल में दीवार नहीं है, यहाँ आवारा कुत्ते फिरते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक स्कूल में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात ने बच्चों को खौफजदा कर रखा है। महंगाई का तूफान कम होने के बजाय बढ़ने लगा। हुकूमत के अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे हवा हो गए। मंडी बाउद्दीन में LPG गैस की कीमतों को भी पर लग गए। घरेलू सार्फिन के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया। इरफान बड़ाइश रिपोर्ट कर रहे हैं। मंडी बाउद्दीन में सुई गैस की बंदिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सारा दिन गैस की बंदिश की वजह से शहरी खाना पकाने से महरूम हो गए। गैस बंदिश की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे और दफातर को जाने वाले मुलाजमीन नाश्ता किए बगैर ही दफातर को रवाना हो रहे हैं। पूरे मुल्क की तरह मंडी बाउद्दीन में भी गैस की लोड शेडिंग की वजह से हम परेशान हैं। बच्चों को सुबह स्कूल जाने के लिए खाना तैयार नहीं होता, होटलों से खाना लाना पड़ता है। लकड़ी 1000 रुपये मन और सिलेंडर जो है 3500-3600 रुपये में फरोख्त हो रहा है। सुई गैस की बदतरीन बंदिश की वजह से मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गए। औरतों को अमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। बाजार से लोग महंगे दामों खाना खरीद कर अपने बच्चों का पेट पालने पर मजबूर हैं। सोने पर सुहागा LPG की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। 250 से 300 रुपये फी किलो गैस फरोख्त हो रही है। लकड़ियों की कीमतों में भी होशर बा इजाफा देखने में आया है। मतवस्त और सफ़ेद पोश तबके ने अरबाब इख्तियार से LPG और लकड़ी की कीमतों में नुमाया कमी और सुई गैस की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मंडी बाउद्दीन। टंडोवाला यार्ड में मौसम सर्द होते ही गैस गायब रहना मामूल बन गया। घरेलू सार्फिन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मजीद जानते हैं सैयद अतीकुर रहमान की इस रिपोर्ट में। टंडो अलायार और टंडो लेयार के गिरदोनवा के इलाकों में गैस ना होने की वजह से घरेलू सार्फिन के साथ साथ होटल मालकान और दुकानदार भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चों को नाश्ता नहीं मिलता और भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता है और ड्यूटी पर जाने वाले अफराद भी गैस ना होने की वजह से सुबह नाश्ते किए बगैर जाते हैं। और अब LPG गैस का रेट भी बहुत ज्यादा हो चुका है जो गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। गैस भी नहीं आ रहा, सारे परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं ऐसे ही बगैर नाश्ते के जाते हैं। गैस के हवाले से ये है कि बड़ी परेशानी है, गैस होता नहीं है। सुबह बहुत परेशानी है, स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी होती है। मजीद इलाका मकीनों का कहना था कि सुई गैस की बंदिश मामूल बन गई है। ना ही सुबह के वक्त गैस होती है, ना ही दिन के वक्त और ना ही रात के वक्त। टंडोलियार के शहरों ने हुकूमत ने वक्त से मुतालबा किया है कि इसके खिलाफ पूरी नोटिस लिया जाए ताकि हम बआसानी गुजर बसर कर सके। कैमरामैन रियाज शेख के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज़, टंडोलियार।
दीना और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार है। शहरियों में खौफ खरास फैलने लगा। आवारा कुत्तों की वजह से मुतादिद शहरी कुत्तों के काटने से जख्मी हो चुके हैं। अवामी और समाजी हलकों ने आवारा कुत्तों के सदबाब के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। दीना और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार के बायस शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। दीना शहर मंगला रोड नकोदर में चंद दिनों में मुतअद्दिद स्कूल के बच्चों समेत आम शहरियों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर दीना में लाया गया है। आवारा कुत्तों की भरमार से वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजते हुए भी खौफ महसूस करने लगे हैं। नवाई इलाका डुमेली में भी आवारा कुत्तों की भरमार हो चुकी है, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। दीना में ये आवारा कुत्तों की भरमार है, बराए मेहरबानी इनका सदबाब किया जाए और जो लोग परेशान हैं उनके वालिदैन कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं गलियों में छोटे बच्चे तो वो जख्मी कर देते हैं, तो ये लम्हा फिक्रिया है, बराए मेहरबानी इस पर तवज्जो दी जाए। इंतजामिया से अपील करते हैं कि आवारा कुत्तों को तल्फ किया जाए ताकि बच्चे बड़े बुजुर्ग इनसे महफूज रह सके। दीना की कोई गली या सड़क ऐसी हो जहाँ ये आवारा कुत्ते मौजूद न हो। बच्चे और बड़े सभी इनके निशाने पर हैं। दीना की आवाम ने जिले इंतजामिया और हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि इन आवारा कुत्तों को तल्फ करने के लिए संजीदा इकदाम करे ताकि मासूम शहरियों की जान को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। पंजाब भर की तरह पाक पतन शरीफ में भी हुकूमत पंजाब के अहकामात पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के दीगर शहरों की तरह जिला पाक पतन की दोनों तहसील पाक पतन और तहसील आरिफ वाला में भी असिस्टेंट कमिश्नर मियां अजहर तारिक वट्टू हर माह खुली कचहरी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। खुली कचहरी में साइलिन के रेवेन्यू के मुतालिक तमाम तर मामलात को न सिर्फ सुना जाता है बल्कि इनके फौरी हल के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए जाते हैं ताकि साइलिन को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसे साइलिन असिस्टेंट कमिश्नर के फैसलों पर इंतहाई खुश और इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक तहसील आरफवाला में खुली कचहरी का इनकाद 1 और 2 तारीख को किया जाता है, जिसमें मौके पे पटवारी से लेके असिस्टेंट कमिश्नर तक मौजूद होते हैं। जो डेली के बुनियाद पर उनके मसाइल होते हैं वो मौके पे हल किए जाते हैं, जिसमें फ़र्द का इजरा है, डोमिसाइल का इजरा है और कम्यूटेशन है, रजिस्ट्री है या करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड की रिपोर्ट्स होती हैं। तो वो उसी दिन वन विंडो ऑपरेशन के तहत लोगों के मसाइल मौका पे हल कर दिए जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला में अजहर तारिक वट्टू का कहना है कि अवाम के मसाइल के हल के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हैं। अवाम से इल्तमास है कि अपनी किसी भी किस्म के मसाइल के लिए मुझे फौरी तौर पर आगाह करें। इंशाल्लाह इसे मौके पर हल किया जाएगा। हमेशा अवाम की खिदमत को तरजीह दी है। कैमरामैन राशिद हजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाक पतन शरीफ।